नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह, बीए पार्ट फाइनल इंग्लिश में पहले हमने एक स्टोरी की, फिक्शन एंड नॉवल सेक्शन जो है, स्टोरीज़ एंड फिक्शन वाला जो सेक्शन है, उसमें पहले हमने एक स्टोरी की थी रस्किन बॉन्ड की, द मीटिंग पूल। नेक्स्ट जो है हम स्टोरीज़ ही करेंगे क्योंकि टेक्स्ट अभी अवेलेबल नहीं है एसेस का। तो स्टोरी है बाय मुंशी प्रेमचंद। इट इज़ अ ट्रांसलेटेड स्टोरी। वी ऑल नो दैट प्रेमचंद वाज राइटर इन हिंदी लैंग्वेज। मुंशी प्रेमचंद, पहले हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अबाउट द ऑथर, हिज ओरिजिनल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव. So we must know that his pen name was Munshi Premchand. His original real name was Dhanpat Rai Srivastav. He was born on 31st July 1880 and he died on 8th of October 1936. He is better known by his pen name Munshi Premchand. He was an Indian writer famous for his modern Hindustani literature. Okay, we all know that. He is one of the most celebrated writers of Indian subcontinent, India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. He was one of the most celebrated writers of Indian subcontinent, and he is regarded as one of the foremost Hindi writers of early 20th century. He is considered as one of the foremost, सर्वप्रथम हिंदी लेखकों में से एक माना जाता है 20th century के। His novels include Godan, Karambhumi, Gaban, Mansarovar, Eidgah. These are some of his best known and well celebrated works. He published his first collection of 5 short stories in 1907 in a book called सोजे वतन। ये उनकी पहली स्टोरी कलेक्शन थी जो 1907 में आई। He began writing under the pen name Nawab Rai. So first he began writing under the pen name of Nawab Rai, but this did not go very well. This did not catch the attention of many critics. But subsequently, later on, he switched to Premchand. बाद में उन्होंने क्या किया? He changed his name from Nawab Rai to Premchand. Changed his pen name actually, not his original name. मुंशी being an honorary prefix, ये बस एक सम्मानजनक prefix है मुंशी, इसलिए उन्हें मुंशी प्रेमचंद कहा जाता था। A novel writer, story writer and dramatist, he has been referred to as the Upanyas Samrat, emperor among novelists. By writers, he is also called the Upanyas Samrat, emperor among the novelists. His works include more than a dozen novels, more than 12 novels, around 300 short stories, several essays, and translations of a number of foreign literary works into Hindi. He was a very versatile writer. We all know that. Many of Premchand's works were translated into English and Russian after his death. So his works were translated into English and Russian after his death. And we have this story which is a translation of his Hindi story. एक चतुर बालक नाम की उनकी कहानी है, उसका एक ट्रांसलेशन है। About the story, the child. Now we will read about the story. What is this story about? The story contains various issues of Indian society. This story, we all know that Premchand wrote about Indian culture, Indian society, Indian family values and moral values. These were his major themes among his works. We all have read his famous works like Eidgah and other works. We have found this a repetition of these type of themes again and again in his works. The story contains various issues of Indian society and psychological aspects of Indian mindset. So we can see in this story what type of society and what type of psychological, mental aspects, mental settings were there in Indian mind. The story starts with an introduction of an illiterate Brahmin servant Gangu. The story starts, the narrator of the story is someone who writes the story in first person. We can think that it is Premchand himself, but imagine this as a rich landlord or rich person who has many servants.
illiterate Brahmin servant Gangu, who thinks he is the superior among all the servants because he is Brahmin. We all know the caste system and Vyavastha of Indian continent, Indian country and Indian culture. So there is a servant named Gangu who thinks, he believes that he is superior, he is better than others among the servants, not better than his lord or his master, but he thinks that he is better than his other servants because he is a Brahmin. Why? Because he thinks he is from a higher caste, that is why he is superior. The owner of the house is the narrator. The owner of the house is the narrator, the one who reads the story, writes the story, tells the story, and he could be Premchand himself, or he could be Premchand himself. We do not know for sure. The rigid mentality of Gangu irritates his master again and again. This rigid mentality, this hard thinking, this stern thinking of Gangu that he is superior than other, this irritates, disturbs the mentality of his master again and again, because his master is very generous in this matter and very modern in this matter, but he is not much affected with this kind of behavior. But his master ignores him again and again because master is very moderate towards him. One day Gangu confesses his love towards a widow named Gomti Devi. One day Gangu comes to his master and says that he loves Gomti Devi, a widow, and he wants to marry her. He also marries Gomti, who has betrayed 3 husbands before her marriage with Gangu. Now Gomti has already betrayed 3 husbands before her marriage with Gangu. Now Gomti, we must believe that she is a type of characterless lady. Only the story will prove the real character of Gomti. This story contains Indian society and culture very minutely, very explanatorily, very microscopic view of Indian society has been presented in this story. We can read and observe that Gangu is an illiterate Brahmin, but now he has proud upon his caste. He is proud upon his caste. There is a mistake, has लिखा हुआ है. He is proud upon his caste as a Brahmin. Gomti is a widow and remarriage of widows was not general practice. उस समय दोबारा से विधवाओं की शादी करना कोई जनरल प्रैक्टिस भी नहीं थी, लेकिन एक ब्राह्मण होने के बावजूद he marries a widow, and the afterlife of the widow and exploitation is also mentioned in this story. और इस स्टोरी में विधवाओं की जो बाद की ज़िंदगी होती है और उनका किस प्रकार से शोषण होता आया है, वो भी इस स्टोरी में it has been also mentioned in this story. Issue of poverty in Gangu's life. Gangu के जीवन में दरिद्रता, गरीबी and his social life is also important in this story. वो भी इस story में काफ़ी important है. The child is a symbol of love between Gomti and Gangu as well as a symbol of awareness on the part of a narrator. तो ये जो चाइल्ड है, इसका टाइटल है, वो जो चाइल्ड इसमें है भी स्टोरी में वो एक सिंबल ऑफ लव है बिटवीन गोमती एंड गंगू एज वेल एज अ सिंबल ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ नरेटर. फिर स्टोरी थोड़ी शुरू कर लेते हैं. थोड़ा स्टोरी की सेटिंग का पता चल जाएगा. People call Gangu a Brahmin. People call Gangu a Brahmin because he is a Brahmin, and Gangu behaves like one, and he behaves like one means that he thinks he is superior than others. My sin and servants salam me from a distance. मेरे जो साथी हैं या मेरे जो सर्वेंट हैं, जो मेरे घर में काम करने वाले हैं, they salam me from a distance. Gangu never does that. Gangu does not do that. Perhaps he expects me to touch his feet. Perhaps वो चाहता है कि मैं उसके पैर छूऊं क्योंकि वो ब्राह्मण है. He never handles the tumbler in which I have drunk. जिस बर्तन से मैं पानी पीता हूँ वो उसे छूता नहीं है. And I have never dared to ask him to fan me. और मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई, हालांकि वो मेरा नौकर है, मैंने उसे कभी मुझे पंखा झुलाने के लिए नहीं कहा. Whenever I get drenched in sweat, जब भी मैं पसीने में भीग जाता हूँ, and no one is around, कोई मेरे आसपास ना हो, Gangu picks up the fan by himself. मैं
कहता नहीं हूँ, वो खुद चाहे पंखा उठा ले, मैं उसे नहीं कह पाता, पता नहीं ऐसी क्या वजह है। बट इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम हिज लुक्स दैट ही इज़ डूइंग मी अ फेवर, बट इट बिकम्स क्लियर, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस डिस्डेनफुल, इस प्रकार के प्राइड के साथ पंखा झुलाता है जैसे कि वो मुझे मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो, नौकर का धर्म नहीं निभा रहा बल्कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो कि वो ऊंची जाति का है और फिर भी मुझे पंखा झुला रहा है। एंड आई डोंट नो वाई आई एट वंस स्नैच द फ़ैन फ्रॉम हिज हैंड्स, और मुझे भी नहीं पता कि मैं उससे पंखा छीन क्यों लेता हूँ, उसके चेहरे के ऐसे हाव भाव देख के और ख़ुद ही पंखा जलाने क्यों लग जाता हूँ। ही शॉर्ट टेम्पर्ड, उसका टेम्पर्ड शॉर्ट है, यानी कि उसे जल्दी गुस्सा आता है। एंड कांट स्टैंड माई क्रिटिसिज्म, और मेरी आलोचना कर तो वो बिल्कुल ही सहता नहीं है और उसमें विरोध करता है। ही हार्डली हैज़ माई फ्रेंड्स एनी फ्रेंड्स, यहाँ एनी आना था कि उसके कोई भी फ्रेंड्स भी नहीं हैं। परहैप्स he thinks it below his dignity to sit beside my sing and servants, और वो उससे मित्र भी कैसे बनाए क्योंकि वो सर्वेंट है और दूसरे सर्वेंट्स के साथ बैठना और उनके साथ बैठना ही वो अपनी डिग्निटी, अपने जो प्राइड है, अपना जो घमंड है उससे नीचे मानता है, अपने गौरव से नीचे मानता है। बिकॉज ही इज़ अ ब्राह्मण। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइजिंग विद एनी वन, मैंने उसे किसी के साथ भी सोशलाइज करते हुए, बातचीत करते हुए, फ्रेंडशिप करते हुए नहीं देखा। वट सरप्राइजेज मी मोस्ट इज़ दैट ही इज़ नॉट एडिक्टेड टू भांग और थिंग्स लाइक दैट, अ हैबिट दैट इज़ स्पेशल बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ हिज कास्ट। लेकिन एक चीज़ मुझे अक्सर बहुत ही सरप्राइज़ करती है, दैट ही इज़ नॉट एडिक्टेड टू भांग और थिंग्स लाइक दैट, कोई भांग या उस प्रकार की और चीज़ें खाने का उसे कोई आदित उस चीज़ खाने का वो आदि नहीं है। अ हैबिट जो कि बहुत ही स्पेशल करेक्टरिस्टिक है ऑफ द पीपल ऑफ हिज कास्ट, उसके जो कास्ट के लोग हैं उनके बीच। आई हैव नेवर सीन हिम परफॉर्मिंग एनी रिलीजियस रिचुअल और बाथिंग इन द रिवर, और ना ही वो कोई धार्मिक कर्मकांड करता है और ना ही वो नदी में नहाने जाता है। ही इज़ टोटली इलिटरेट, पूरी तरह से अनपढ़ है, हालांकि वो ब्राह्मण है। इवन देन ही इज़ अ ब्राह्मण, चाहे वो ब्राह्मण है बट वो इलिटरेट है। एंड एक्सपेक्ट्स अदर टू रिवरेंस एंड सर्व हिम, और दूसरों से उम्मीद करता है कि दूसरे उसको श्रद्धा दें, रिवरेंस श्रद्धा, एंड सर्व हिम उसकी सेवा करें। बट वाई शुडंट ही, पर क्यों उसे दूसरों को क्यों देनी चाहिए। When people are holding on to the wealth inherited from their ancestors under the belief that they themselves have created that wealth, then why should he give up the privilege and status bequeathed to him by his ancestors। वो कहता है कि जब लोग अपने माता पिता या अपने पूर्वजों की कमाई हुई दौलत को लिए बैठे हैं और वो कहते हैं कि वो दौलत के हकदार हैं, तो क्यों नहीं उसके जो पूर्वज हैं जिन्होंने वो प्रिविलेज, वो जो विशेष अधिकार है, वो स्टेटस जो है दूसरों से बेहतर स्टेटस जो उसने बिक्वीथ उसके ऊपर आया है अपने जन्म से, क्यों नहीं वो उस स्टेटस को माने या फिर वो अपने पूर्वजों की तरह बिहेव करे। दिस इज हिज बर्थ राइट, वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाय नेचर आई एम रिजर्व्ड विद माई सर्वेंट्स, बाय नेचर मैं अपने सर्वेंट्स से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। आई डोंट लाइक देम टू कम टू मी अनलेस आई आस्क देम फॉर, कि जब तक मैं उन्हें बुलाता नहीं, मैं उन्हें मेरे पास नहीं बुलाता तो वो आते भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है कि वो मेरे पास आएँ। आई डोंट लाइक टू साउट फॉर देम फॉर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों के लिए मैं उन्हें चिल्ला के बुलाता नहीं हूँ। आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू pour वाटर फ्रॉम द सुराही विद माई ऑन हैंड्स, और मैं पानी खुद ही डाल लेता हूँ सुराही में से, और लाइट द लैम्प, लैम्प को जलाना, और पुट माई शूज़, मेरे जूते साइड में रखना, और टेक आउट अ बुक फ्रॉम द शेल्फ ऑल बाई माई सेल्फ, ये सब मैं खुद कर लेता हूँ। देन आस्क हिंगन और माइकू टू डू एनी ऑफ, ये उनके नौकरों के नाम हैं, उनमें से किसी को ये कुछ करने की बजाय मैं खुद ही कुछ करने के लिए कहने की बजाय मैं खुद ही कर लेता हूँ। दिस गिव्स मी फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये मुझे सेल्फ रिलायंस की एक फीलिंग देती, आत्मनिर्भर होने की फीलिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मुझे देता है। माई सर्वेंट्स टू हैव अंडरस्टूड माई नेचर, मेरे नौकर भी मेरे नेचर को समझ गए हैं। एंड सेल्डम कम टू माई मी अनलेस आई कॉल देम, और बहुत ही कम वो मेरे पास आते हैं जब मैं उन्हें नहीं बुलाता, या जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वो नहीं आते। देयरफॉर वन मॉर्निंग व्हेन गंगू केम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी आई डिडंट लाइक इट, एक दिन गंगू मेरे पास आया, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं आया कि वो बिना बुलाए क्यों आया है। These people come to me either to ask for an advance or to complain about one of their companions। ये लोग जो हैं, नौकर जो हैं, या तो वो किसी एडवांस में पैसा लेने के लिए आते हैं, तनख्वाह एडवांस में, या फिर एक दूसरे की शिकायत करने के लिए आ जाते हैं। एंड आई डिसलाइक दैट, और मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं हैं। आई पे एवरीवन ऑन द फर्स्ट ऑफ मंथ, मैं 1 तारीख को सब कोई तनख्वाह दे देता हूँ। वेन एवर समवन कम्स टू आस्क फॉर एन एडवांस आई गेट वर्कड अप, जब भी कोई मेरे पास पैसा लेने एडवांस में आता है
तो मैं वक्त अब मुझे ये बात चिढ़ आती है या मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक कीपिंग अकाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, और मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा मैं देता हूँ फिर मुझे वो लिख के रखना पड़ता है और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। एंड देन इफ़ समवन हैज़ गॉट हिज फुल वेजेस फॉर अ मंथ ही हैज़ नो बिजनेस टू फिटर इट अवे इन 15 days एंड देन कम एंड आस्क फॉर एन एडवांस और अ लोन, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तनख्वाह लेने के बाद फुल लेने के बाद 15 दिन में अगर अपनी तनख्वाह खर्च कर देता हो फिर मेरे पास मांगने के लिए आ जाता है या लोन लेने के लिए आ जाता है तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। आई हेट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, और साथ ही मुझे दूसरों की शिकायतें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। आई लुक अपॉन दैम एज साइन ऑफ वीकनेस और अ मीन अटैम्प्ट एट फ्लैटरी, और मुझे जब भी कोई मेरे पास आके शिकायतें करता है तो मुझे ये कमज़ोरी की तरह नज़र आता है और फ्लैटरी की तरह, चापलूसी की तरह नज़र आता है। आई नीटेड माई ब्रोज एंड सेड व्हाट्स द मैटर, आई डिडंट कॉल यू। जब गंगू आया तो मैंने कहा क्या बात है, मैंने तो नहीं बुलाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी अ लुक ऑफ पोलाइटनेस एंड सप्लिकेशन एंड इवन अनईज ऑन हिज प्राउड फेस। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो वो बहुत ही प्राउड फील करता है, वो ब्राह्मण है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर पोलाइटनेस, सप्लिकेशन और इवन अनईज ऑन हिज प्राउड फेस पे ऊपर ऐसे विचार, ऐसे हाव भाव देख के मैं अमेज हुआ, हैरान हुआ। इट सीम्ड ही वांटेड टू से समथिंग बट वाज अनेबल टू फाइंड वर्ड्स फॉर इट। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। इन इरिटेशन आई सेड व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है, व्हाई डोंट यू से समथिंग, कुछ कहते क्यों नहीं। यू नो इट्स टाइम फॉर मी टू गो फॉर वर्क एंड वर्क आई एम गेटिंग लेट, तुम्हें पता है मुझे अब घूमने जाना और मैं लेट हो रहा हूँ। गंगू रिप्लाइड इन ए डिजेक्टेड टोन ऑल राइट यू गो फॉर अ वॉक आई विल कम लेटर। उसने कहा अभी आप जाओ, उसने निरादर की तरह बोला कि अभी आप घूमा, मैं बाद में आ जाऊँगा। दिस वॉज स्टिल मोर वरीशम, ये उससे भी ज़्यादा चिंताजनक था। नाउ नोइंग दैट आई डोंट हैव मच टाइम ही वुड क्विकली ब्लर्ट आउट ऑल इन वन आउटबर्स्ट। जब मुझे लगा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और वो एकदम से बोल पड़ेगा। ऑन अनदर ओकेज़न द रोग वुड गो ऑन बी मॉर्निंग फॉर आवर्स, और कई बार और कोई ओकेज़न हो तो वो कई घंटों तक इस प्रकार की बी मॉर्निंग, इस प्रकार का संताप करता रहता है। He may be regarding my reading and writing as some kind of work, but my moments of contemplation, the most crucial ones of my vacation, are mere relaxation in his eyes. वो समझता है कि मैं जब लिखता हूँ या फिर जब मैं और कुछ करता हूँ इस प्रकार का, तब पढ़ता हूँ और लिखता हूँ तब तो मैं काम करता हूँ, लेकिन जब मैं वास्तव में कंटेम्पलेशन करता हूँ, विचार करता हूँ, मनन करता हूँ, उन्हें वो रिलैक्सेशन ही मानता है। तो उसे नहीं पता कि वास्तव में मैं जब सोचता हूँ वही मैं बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ से हमें एक आइडिया होता है कि शायद ये खुद लेखक, खुद ही नरेटर है। एंड ही वुड कैच होल्ड ऑफ मी एट सच टाइम, और ऐसे समय में आके वो मुझे पकड़ देता है। हैव यू कम टू आस्क फॉर एन एडवांस, आई डोंट गिव एडवांसेस, मैंने कहा मैं एडवांस में पैसा नहीं देता। रूडली कहा नो सरकार आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एन एडवांस, मैंने तो कभी आपसे एडवांस नहीं मांगा। देन हैव यू कम टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, आई डोंट लाइक टू लिसन टू कंप्लेन, तो क्या तुम कंप्लेन करने के लिए आए हो, मुझे कंप्लेन भी पसंद नहीं है। नो सरकार आई हैव नेवर कंप्लेन अगेंस्ट एनी वन। गंगू नाउ लुक्ड डिटर्मिन्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, इट सीम्ड ही वॉज मार्शलिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ फॉर अ लॉन्ग हॉप। ऐसे लग रहा था वो सारी ऊर्जा इकट्ठी कर रहा था, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा था एक लंबी छलांग के लिए। ही स्पोक इन एन अनस्टडी टोन, कहा प्लीज़ रिलीव मी ऑफ माई ड्यूटीज़, उसने कहा मुझे मेरी ड्यूटीज़ से रिलीव कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नाउ आई वॉन्ट बी एबल टू सर्व अंडर यू, अब मैं आपके अंडर काम नहीं कर सकता, आपका नौकर का काम नहीं कर सकता। आई हैड नेवर बिफोर हर्ड दिस काइंड ऑफ डिमांड, इट हर्ट माई सेल्फ प्राइड, ऐसी डिमांड मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी और ये मेरे आत्म सम्मान को मुझे चोट लगी। आई कंसिडर माई सेल्फ अ मॉडल ह्यूमन बिहेवियर, मुझे लगता था कि एक मालिक के नाते मैं एक मॉडल हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ जो नौकरों के साथ इतना अच्छा पेश आता हूँ, और ऐसे में अगर कोई आके नौकरी से जाने की बात करता है तो मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी। आई डोंट स्पीक हार्शली टू माई सर्वेंट्स एंड ट्राई टू कीप माई बॉसी एटीट्यूड शीद इन स्कैबर्ड, और मैं अपनी जो बॉसी एटीट्यूड है उसे भी म्यान में रखता हूँ और अपने सर्वेंट्स के साथ कभी भी हार्शली बात नहीं करता। सो आई वॉज अमेज्ड एट दिस प्ली, और इस प्रकार की प्ली के ऊपर मैं अमेज्ड हुआ, हैरान हुआ। आई सेड इन अ हार्श टोन व्हाई व्हाट्स योर रिसेंटमेंट, क्या बात है तुम्हारे रिसेंटमेंट की वजह क्या है। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम आगे जो अगली वीडियो डालेंगे उसमें हम स्टोरी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ के देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिंपल ट्रांसलेशन है और जनरल पब्लिक के लिए ये ट्रांसलेट किया गया है। स्कूलों में भी इस प्रकार की स्टोरी जो है वो
कलेक्ट करके उनकी बुक्स में प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो आपके लिए तो और भी आसान रहना चाहिए, 3 साल से आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो इसे पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और देखें कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है whenever you are writing a story। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं।